میرا نام صبا ہے۔ یہ نام امی نے رکھا۔ دادی مجھے گاؤں کی کلی کہتی تھی۔ ان دنوں ہم لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ جب بڑے بھیا کی شادی ہو گئی، میں 8ویں جماعت میں تھی۔ شادی کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا اور وہ شہر میں قیام پذیر ہو گئے۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے بھائی بھابھی اصرار کر کے مجھ کو ساتھ لے آئے۔ بھیا تو صبح ڈیوٹی پر چلے جاتے، گھر میں ہم دونوں رہ جاتی۔ بھابھی مجھ کو بہت چاہتی تھی، بہت خیال رکھتی تھی، وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ جب کبھی وہ ضروری کام کے سلسلے میں دورے پر جاتے، میں اور بھابھی اکیلے ہو جاتے۔ اکثر سودا سلف خود لانا پڑتا تھا۔ اس دن بھی بھائی دورے پر گئے ہوئے تھے۔ بھابھی نے کہا صبا چلو مارکیٹ چلتے ہیں۔ بازار جاتے ہی ہم سب سے پہلے جس دکان میں داخل ہوئے اس کا مالک اتفاق سے ہمارے گاؤں کا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی میری بھابھی سے گاؤں میں شادی کرنے کی درخواست کی تھی اور بھابھی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تبھی وہ ان کا دشمن ہو گیا تھا، لیکن مجھے ان حالات کا علم نہیں تھا۔ اس شخص کا نام ہیبت خان تھا۔ بھابھی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خبیث سی شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فوراً آگے بڑھ کر مجھ کو بازو سے پکڑ لیا اور گردن پر چاقو رکھ دیا اور بھابھی کو دھمکی دی کہ فوراً اندر دکان میں چلی جاؤ ورنہ اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ بھابھی اس کی دھمکی سن کر خاموش کھڑی تھی اور تشویش بھرے انداز میں میری جانب دیکھ رہی تھی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی تو بالوں سے کھینچ کر مجھ کو دیوار میں دے مارا۔ تبھی بھابھی کی صبر کی ہڈ ٹوٹ گئی اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، ہیبت تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو۔ پھر نہ چاہتے ہوئے میری خاطر انہوں نے اندر دکان میں قدم رکھ دیا۔ یہ 2 بجے دوپہر کا وقت ہوگا، بازار میں لوگ زیادہ نہ تھے، دکان میں بھی کوئی گاہک نہیں تھا۔ باہر دھوپ تیز تھی، کسی کو خبر نہ تھی کہ دکان میں کیا ہو رہا ہے، اور اندر ہم 2 کمزور ہستیاں ایک طاقتور شکاری کے جال میں پھنس گئی تھی۔ ایک کہاں، یہاں تو اس کے ساتھی بھی تھے۔ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ دکان کے اندرونی حصے میں اس کے 3 اور ساتھی بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں نے ہیبت خان کی ہدایت پر مجھے کرسی سے باندھ دیا اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ پھر یہ چاروں میری بھابھی پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس چاقو تھے اور بھابھی بہت خوف زدہ تھی، لہٰذا آواز ان کے حلق سے نہ نکلی اور نہ ہی انہوں نے شور مچایا۔ شاید کہ میری جان بچانے کی خاطر شور نہ مچایا اور اتنا بڑا ظلم سہ لیا کہ وہ کتے بھابھی پر جھپٹ پڑے۔ جب ان بھیڑیوں کے انتقام کی آگ بجھ گئی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تبھی ظالم شخص نے مجھ سے کہا، جب اسے ہوش آئے تو کہنا کہ ہیبت خان کو انکار کرنے کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوش میں آ گئی تو میں جیسے تیسے کر کے ان کو گھر لے آئی۔ انہیں اپنی بے حرمتی کا از حد ملال تھا۔ سارا دن صدمے کی حالت میں بے حس و حرکت پڑی رہی۔ رات کے کسی پہر اٹھ کر کچن میں گئی۔ میں سمجھی بھوک لگی ہوگی، تبھی ان کے پیچھے گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اپنے سراپا پر مٹی کا تیل ڈال کر وہ خود کو ماچس سے آگ لگا رہی تھی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوڑ کر ماچس ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، صبا تم نے مجھ کو کیوں آگ میں جلنے نہ دیا؟ اب میں تمہارے بھیا کے لائق نہیں رہی، خدا کے لیے مجھے مر جانے دو۔ جانے پھر وہ کتنی دیر تک مجھ سے لپٹ کر روتی رہی۔ دلاسا دے کر بڑی مشکل سے کمرے تک لائی اور ان کے کپڑے تبدیل کرائے۔ روتے روتے ان کی ہچکی بند گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا، آپ بے قصور ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں کیسے آپ کو جل جانے دیتی؟ آپ مجھ کو جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ ان سے وعدہ لیا کہ آج کے بعد اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کریں گی۔ وہ کہنے لگیں، تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ اس بات کو راز رکھو گی، ورنہ میری اور تمہارے بھیا کی ساری جگ میں رسوائی ہو جائے گی۔ خدا کا شکر کہ بھیا 4 روز بعد آئے۔ تب تک حالات معمول پر آ چکے تھے۔ میں نے لب سی لیے اور بھابھی کی بے حرمتی کا پردہ رکھ لیا۔ کبھی کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کیا، ورنہ وہ بیوی سے بدظن بھی ہو سکتے تھے کہ تمہارا ماضی میں ہیبت خان کے ساتھ کیا معاملہ رہا تھا۔ کچھ دن شہر میں رہ کر ہم گاؤں واپس آ گئے، کیونکہ اب کے بھیا کا تبادلہ ایسی جگہ ہوا جہاں پر وہ اپنی فیملی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ بھابھی بجھی بجھی رہتی تھی، خود کو اپنے جیون ساتھی کا مجرم سمجھتی تھی۔ تاہم میں نے کبھی ان کا راز فاش نہ کیا، اپنے گھر میں بھی کبھی کسی سے ایک حرف نہ کہا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔
वालिद साहब अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज देना चाहते थे। मेरे वहमो गुमान में न था कि अचानक ही शादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहरहाल मौत की तरह शादी की घड़ी भी मुकर्रर होती है। रिश्ता एक मोहल्लेदार औरत लाई थी। अब्बू के पास मकान खरीदने के लिए थोड़ी सी रकम थी जो उन्होंने ज़मीन फरोख्त करके हासिल की थी। बेटी को ब्याहने के लिए इस रकम को निकलवा लिया और 15 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई। मुझसे राय लिए बगैर वालिदैन ने मेरी शादी कर दी। मैं कुछ ना बोल सकी क्योंकि उनके फैसले का एहतराम ना करती तो क्या करती। हालांकि मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कॉलेज लाइफ देखना चाहती थी। एक रुबीना भाभी का सहारा था, मगर जो सान्हे उन पर गुजरा था उसके बाद उनको ऐसी चुप लगी कि अब वो किसी मामले में बोलती ही ना थी। मेरी शादी जिसके साथ हुई उसका नाम सलीम था। बज़ाहिर खुश शक्ल और खुश गुफ्तार था, मगर ये बाद में इंकशाफ हुआ कि घटिया ख़ानदान से था। फिर वो पहले से शादीशुदा भी था और पहली बीवी से एक बेटा था, लेकिन वो अपनी माँ के पास होता था और ये मेरे पास होते थे। शुरू में सलीम ने इस बात को छुपाए रखा कि वो शादीशुदा है। जब किसी मोहल्लेदार औरत की ज़बानी ये हकीकत पता चली और मैंने बाज़ पुर्स की तो वो मुझसे झगड़ पड़ा और मैके छोड़ गया। 6 माह मैं मैके रही, खर्चा भी ना दिया। ताहम शादीशुदा लड़की माँ बाप के घर कब तक रह सकती है। बहन भाई कभी कोई बात कह देते तो मैं रोने लगती थी। मेरी हालत रोज़ पर रोज़ ख़राब होती जाती थी। तभी अब्बू ने ख्याल किया शायद मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उन्होंने सलीम को ख़त लिखा कि जो भी हालात हैं तुम्हारे, अब तो शादी हो गई है, आकर अपनी बीवी को ले जाओ। यहाँ बहन भाई उसके साथ झगड़ा करते हैं। ख़त मिलते ही मेरे मियाँ साहब आ गए और बोले कि इस शर्त पर सबा को घर ले जाऊँगा अगर आप अपनी छोटी बेटी हिना का रिश्ता हमको दे दें। अब्बू ने जवाब दिया कि बड़ी को सुकून नहीं मिला तो दूसरी बेटी का रिश्ता आप लोगों को कैसे दे दूँ। जानबूझकर बेटी को कुएं में नहीं फेंक सकता। फिर उन्होंने मजबूर करके भेजा कि जैसे भी हो हमको तुम्हारी बहन का रिश्ता चाहिए। मैंने अम्मी अब्बू की मिन्नत की कि वो इस अमर पर राज़ी हो जाएं, क्योंकि मेरे खामद ने मुझे मजबूर किया था। खैर अब्बू मान गए और छोटी बहन की मंगनी मेरे देवर से हो गई। मैं समझ रही थी कि बहन की मंगनी के बाद ये लोग मुझ पर मेहरबान हो जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ और उन्होंने मुझसे वही सलूक रवा रखा। मैं बहुत परेशान थी, क्या करती। मैके में खुशी मिलती थी और ना ससुराल में सुकून हासिल था। इन दिनों भी बस एक भाभी मेरी हमदर्द और गमगुसार थी, लेकिन मैं उन्हें अपना दुख नहीं बताती थी। मुबादा परेशान हो, क्योंकि परेशान होने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। इन्हीं दिनों मेरे शौहर की पोस्टिंग गिलगित में हो गई और मैं उनके हमरा चली गई। यहाँ मेरे यहाँ लड़का हुआ जो पैदाइश के कुछ दिन बाद फौत हो गया। उसकी वफ़ात के बाद सलीम ने मुझसे निहायत बुरा सलूक किया कि बच्चे की मौत की जिम्मेदार तुम हो। वो जब ड्यूटी पर जाता मुझको कमरे में बंद कर जाता और वापस आकर ताला खोलता। जब गुस्सा आता पीट डालता, मगर मैं बर्दाश्त करती और क्या कर सकती थी। सोचती थी एक बार वालिदैन को कहा था, दोबारा इसी शख्स के पास लौट कर आना पड़ा। अब तो बार बार वालिदैन को क्यों दुख दूं और आजमाइश में डालूं कि बहन भाई तो मैके में मुझे चैन से रहने ना देंगे। मैंने अपने दुखों की हवा भी इन्हें नहीं लगने दी, मगर जब भी बीमार होती अब्बू को फौरन पता चल जाता कि मुझे कोई तकलीफ है। मैं गिलगित में थी। अब्बू ने ख़त लिखा कि मैंने ख्वाब में देखा है तुम बहुत परेशान हो, फौरन इत्तला करो, मैं आ जाऊंगा। अब्बू को फिर भी कोई बात ना बताई। इतना लंबा और तकलीफदा सफ़र करके वो आते तो मैं यहाँ उनको नाखुश मिलती। 6 माह बाद हम गिलगित से वापस आ गए। सलीम ने कहा कि अब हम छोटे भाई की तारीख रखेंगे। अब्बू ने उज़र किया, मेरे हालात अभी ठीक नहीं हैं, मैं बेटी की शादी नहीं कर सकता। उनके इनकार पर तो मेरी शामत आ गई। शौहर ने मुझको कसूरवार ठहराया कि तुमने अपने वालिदैन को मना किया है, अब तुम हरगिज़ वालिदैन से ना मिलोगी। उनसे मिलती हो तो हमारे गिले शिकवे करके हमसे बदजन कर देती हो। तभी वो हमको हिना का रिश्ता देने से गुरेज कर रहे हैं। अब जब वालिदैन भाई भाभी मिलने आते ये उनको बुरा भला कहते और मुझे मारते। यूं ही अजाब सहते सहते साल गुजर गया, लेकिन उनका रवैया ठीक ना हुआ। बहुत तंग करते थे, मारते थे तो मैं सिसक सिसक कर रोती थी। ये आवाज़ भी निकालने ना देते थे। इन्हीं दिनों मेरे यहाँ बच्ची हो गई जो मुर्दा हालत में थी। वालिदैन का आना जाना उन्होंने बंद कर दिया था। कहते थे कि हमारे बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं क्योंकि तुम्हारे वालिदैन तुमको ऐसी दवाएं ला कर देते हैं जिनको खाने से बच्चे मर जाते हैं।
मैंने अम्मी अब्बू को मना कर दिया था कि मिलने ना आया करें, क्योंकि इस तरह मेरे हालात ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा उन्होंने आना बिल्कुल बंद कर दिया। यूं 4 साल तक मैंने उनकी शक्ल तक ना देखी, ना ही उन्होंने मुझे देखा। अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे, उनकी बुरी हालत थी, वो दिन रात मेरे लिए रोते थे। इन 4 सालों में चचा की भी शादी हो गई और उसके बाद मेरी छोटी बहन को अब्बू ने खालाजाद से ब्याह दिया, लेकिन मुझको खबर ना हुई। सलीम मैके ना जाने देते थे। 4 साल घर के अंदर ही और दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा। मेरी हालत कैदियों से बदतर थी। इसी सबब अब्बू ने छोटी बहन हिना की मंगनी ख़त्म कर दी और उसकी शादी खाला के घर कर दी। जब ये खबर सलीम को मिली तो उन्होंने मेरा बुरा हशर कर दिया। जिस्मानी अजियतें थीं, मेरी नाक में मिर्चें डाली और बाजुओं पर छुरी गर्म करके लगाई। ये पूरी रात मुझको खड़ा रखते थे। मैं किसी को ये सितम ना बताती, वहाँ मेरा था ही कौन। माँ बाप को तो मैंने खुद मना किया था कि वो मेरे घर ना आया करें, और अब तन्हा सारे अजाब सह रही थी। इसी असना में अल्लाह ने एक बेटी दे दी जो बिल्कुल ठीक थी। इसकी पैदाइश का पता मेरे घर वालों को एक काम वाली से चला। मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, खुद पर काबू ना रख सके और अम्मी अब्बू मुझसे मिलने आ गए, मगर उनको मेरी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। सलीम से कहा कि हम अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं। सलीम ने जाने ना दिया, कहने लगा कि पहले हमारा खर्चा दें जो हमने शादी पर किया था, फिर अपनी बेटी को ले जाएं। तभी अब्बू ने आला हुकाम को दरख्वास्त दी। यूं पुलिस के ज़रिए मैं अपने माँ बाप के घर पर आ गई। जब मैं मुद्दत बाद मैके आई, अब्बू की आंखों के आंसू ना थमते थे, फिर भी कहते थे कि आज के दिन मैं इतना खुश हूँ, 4 साल बाद सुख की नींद सोया हूँ। वो तो सुख की नींद सोए होंगे, मगर मैं कैसे सोती कि चंद दिन बाद ही सलीम और उसकी बीवी आए और मेरी बेटी मुझसे छीन कर ले गए। इस वक्त वो 1.5 साल की थी और 1 मिनट मुझसे जुदा ना होती थी। 1 साल गुजर गया, उसकी शक्ल तक ना देख सकी। दिन रात उसके लिए तड़पती थी, लेकिन किस्मत ही ऐसी थी। शायद पहले अब्बू मेरे लिए तड़पते थे, अब मैं अपनी बेटी के लिए तड़पती थी। दुआ करती थी खुदा इन जालिमों के दिलों में रहम डाल दे और वो मेरी बच्ची मुझको वापस कर दें। वालिद साहब ने काफ़ी कोशिश की बच्ची मुझे मिल जाए, मगर बेसूद। इधर मेरी ममता को करार न था। पहरों रोती थी, किसी के कुछ समझ में नहीं आता था वो मेरा दुख कैसे दूर करें। जब मैं रोती, भाभी मेरे पास आ जाती, गले लगाती और दिलासा देती। उनके प्यार करने से मुझको वक्ती सुकून मिल जाता था, मगर ये कैफियत आर्जी होती। जब बच्ची याद आती मैं फिर रोने लगती थी। एक रोज़ भाभी ने कहा, सवा मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता। सोचती हूँ कि सलीम के घर चली जाऊँ, तुम्हारी बच्ची को ज़बरदस्ती उठा लाऊं। मैं मना कर देती थी कि भाभी ऐसी गलती कभी ना करना, वो बहुत घटिया लोग हैं। ऐसा ना हो आप वहाँ जाकर फंस जाएं और लेने के देने पड़ जाएं। एक बार पुलिस उनके घर पर मुझे बरामद करने की खातिर रेड कर चुकी है, जिसका बदला उन्होंने मुझसे मेरी मासूम बच्ची को छीन कर लिया है। अब अगर हमसे ऐसी कोई गलती हुई, वो गुस्से में इंतकाम मेरी मासूम बेटी से लेंगे या फिर आपकी जान के दर पे हो जाएंगे। भाभी को मैं समझाती थी, लेकिन जब मुझको कोई समझाता था तो मैं नहीं समझती थी। बस दूर अपनी शहजादी बेटी को याद करके रोती रहती थी। भाभी इस कदर प्यार करती थी कि उनसे मेरा रोना नहीं देखा जाता था। आखिर उन्होंने मेरी मदद करने की ठान ली। एक दिन किसी को बताए बगैर वो घर से निकल गईं और सलीम के घर पहुंच गईं। इत्तफाक के वो और उसके भाई घर पर थे। भाभी ने कहा, सलीम भाई प्लीज़ आप शहजादी को मुझे दे दें, आपसे वादा करती हूँ कि इसको सबा से मिलवा कर वापस ले आऊँगी। सलीम ने कहा, मुझको भाई मत कहो, मैं तुम्हारा भाई नहीं और बच्ची को ले जाने का ख्याल से दिल से निकाल दो। जब तक सबा जिंदा है वो इस बच्ची से नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्या ये उसकी बच्ची नहीं है, सिर्फ आपकी है? आप उसके बाप हैं तो वो माँ है, और माँ को कौन उसकी बच्ची से मिलने से रोक सकता है? बच्ची से मिलना माँ का हक है, इस हक को आप तस्लीम करें, जबकि बच्ची इतनी छोटी है कि इसको माँ से जुदा नहीं किया जा सकता। भाभी ने काफ़ी लेक्चर दिया और समझाया, मगर उनके दिल तो पत्थर थे, कान पर जूं न रेंगी। भाभी से बदतमीजी करने लगे तो वो घर से निकल आईं। बहुत अफसुर्दा थी कि सबा को एक खुशी भी न दे सकी। बहरहाल इतना पता चल गया था कि बच्ची करीबी एक मॉन्टेसरी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जाती है पढ़ने के लिए। उसकी बूढ़ी दादी उसको मॉन्टेसरी छोड़ने जाती है और वही वापस लाती है। भाभी ने मुझे कहा, सबा फिक्र ना करो, देख लेना मैं उनके साथ करती क्या हूँ, ये भी याद करेंगे। कुछ दिन बाद भाभी एक रोज़ मॉन्टेसरी गईं।
हेड मिस्ट्रेस से मिली तो पता चला कि वो भाभी की खालाजाद बहन अनम की नंद है। फिर क्या था, रुबीना भाभी को एक रास्ता मिल गया। वो अपनी खालाजाद बहन के घर गई और मदद की दरख्वास्त की, मगर हेड मिस्ट्रेस को कुछ ना बताया। अनम ने भाभी से कहा, मैं ज़रूर मदद करूंगी, लेकिन कहीं मेरी नंद मुश्किल में ना पड़ जाए। बहरहाल मेरी खातिर भाभी ने कज़न को मना लिया। जिस दिन शहजादी को लाना था, भाभी मुझे भी साथ ले गई और गली के नुक्कड़ पर खड़ा कर दिया। वो खुद अनम के पास गई और उनसे बातें करती रहीं, लेकिन ध्यान मोबाइल फ़ोन पर था। जूं ही मैंने अपनी सास को स्कूल की तरफ आते देखा, भाभी को मिस कॉल दे दी। वो फौरन बाहर आ गई। सामने ही मेरी सास पोती को लेने आ रही थी। अनम ने उस बूढ़ी औरत को गेट के बाहर ही बातों में लगा लिया और भाभी जल्दी से अंदर जाकर शहजादी को ले आई। मेरी बच्ची ने अरसा बाद मुझे देखा था, फिर भी एक नज़र में पहचान गई और मम्मा कहकर मुझसे लिपट गई। मैं जल्दी से उसको लेकर उसकी दादी की पुश्त की तरफ से निकल गई, जबकि अनम मेरी सास से बातों में लगी रही। जब हम रिक्शा में बैठकर घर आ गए, तब मेरी जान में जान आ गई। बच्ची को लेकर हम घर आ गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हम उसे ले आए हैं। मैं तो इतनी खुश थी जैसे दोनों जहान की दौलत मुझे मिल गई हो, क्योंकि उसको पाने के लिए मैं कोर्ट कचहरी का अजाब नहीं झेल सकती थी। अब्बू इस बात के हक में ना थे। उसको पाने का बस यही तरीका था कि उसे उठा लिया जाए। सो ये काम भाभी ने कर दिखाया था। मेरी मोहब्बत में अपनी जान पर खेलकर उन्होंने मेरी तरसी हुई ममता को ठंडक पहुंचाई थी। बस यही उनका जुर्म था जिसकी सजा मिली। जल्द सलीम को पता चल गया कि ये काम भाभी का है। उसने खूब ऊधम मचाया, मगर मेरे भाइयों ने भी खबरदार हमारे दरवाजे पर आए तो डंडों से लहूलुहान कर देंगे। सीधे तरीके से जाओ, कोर्ट में केस दाखिल कराओ। अगर अदालत तुमको बच्ची देगी तो हम इनकार ना करेंगे और अदालत जो फैसला करेगी मान लेंगे। सलीम को यकीन था कि बच्ची अभी इतनी कमसिन है कि अदालत उसकी सगी माँ से लेकर सौतेली माँ और बाप के हवाले कभी ना करेगी। बस उसने भाभी को इंतकाम का निशाना बनाने की सोची, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि भाभी शहजादी को ले गई थी। हम समझे थे कि वो शोर हंगामा करके चुप हो बैठे हैं, मगर वो अंदर ही अंदर भयानक मंसूबा बना चुका था। उसके लफंगे दोस्तों ने ही उसे प्लान बना कर दिया। और एक दिन जब भाभी मेरे छोटे भाई के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी, उसके चंद दोस्त गाड़ी में आए। उन्होंने मेरी भाभी का पीछा किया। शायद वो कुछ दिनों से उनकी निगरानी कर रहे थे। मौका मिल गया, उन्होंने गाड़ी एक सुनसान गली में भाभी के करीब रोकी और उनको ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया। वो पुलिस की वर्दियां पहनकर जाली पुलिस वाले बने हुए थे। भाभी के मुंह पर कस कर हाथ रखा कि वो चीख भी ना सकें। मेरे छोटे भाई की आंखों के सामने वो उनको उठा कर ले गए। वो दिन और आज का दिन भाभी रुबीना का कोई सुराग न मिला। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और बहुत तलाश किया, पर भाभी ना मिली और ना सलीम के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि वो वारदात के वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद था और इस वाकया का ऐनी शाहिद यानी मेरा छोटा भाई उन लोगों को नहीं पहचानता था जिन्होंने भाभी को अगवा किया था। केस चलता रहा, भाभी बरामद ना हो सकी, लेकिन खुदा जाने उनको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। वो दिन और आज का दिन कोई पल ऐसा नहीं कि हम अपनी प्यारी भाभी की याद में रोते ना हों। उनके वालिदैन ने भी बहुत कोशिश की, मगर रायगां रही। भाभी का सुराग ना मिल सका। भाई तो इस गम में आधे रह गए। नौकरी से भी इस्तीफा देकर घर में सारा दिन चुपचाप पड़े रहते हैं। जवानी में बूढ़े नजर आने लगे। बेटी मेरे पास है, दिल को ठंडक मिल गई, लेकिन जब भाभी की याद आती है कलेजा मुंह को आने लगता है। हर दम दुआ करती हूँ, खुदा करे भाभी खैरियत से हों और सही सालम हों, हमको उनकी खबर मिल जाए। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।